صوفی کی دنیا اور دنیا دار کی دنیا ایک ہونے کے باوجود مختلف ہو جاتی۔ عام انسان حواس کی دنیا میں رہتا ہے، اس کا سارا علم حواس سے حاصل شدہ ہوتا ہے۔ آنکھیں دیکھتی ہیں، جو چیز بھی وہ دیکھتی ہیں ان کا ایک لیبل ادھر ادھر سے کان سنتا ہے اور وہ دماغ میں سٹور ہو جاتا ہے۔ ایک چیز کی تصویر اور اس چیز سے متعلق نام، یہ ہے مادے کی دنیا۔ مگر مادے کی یہ دنیا جس برتن میں واقع ہو رہی ہے وہ ہے خلا، وہ ہے خاموشی۔ وہ خلا جس میں چیزیں موجود ہیں، وہ خاموشی جس میں لفظ ابھر کر کوئی معنی بناتے ہیں اور دماغ سٹور کرتا ہے۔ جو حتمی حقیقت کو پانا چاہتا ہے وہ حواس کی دنیا میں رہتا ضرور ہے، اس کو جیتا ضرور ہے، مگر اس کا کمیونیکیشن اس دنیا سے بھی رہتا ہے کہ جو حواس کی دنیا سے ماورا ہے۔ وہ دیوار پر لگی پینٹنگ کو ہی نہیں، دیوار کو بھی جان رہا ہوتا ہے۔ ایک دیوار پر تصویر لگی ہو اور کوئی تم سے پوچھے اشارہ کر کے کہے کہ سامنے تمہیں کیا نظر آ رہا ہے تو تم کیا کہو گے؟ تم کہو گے ایک تصویر۔ صوفی کہے گا ایک دیوار جس پر پینٹنگ بھی لگی ہے۔ کل حقیقت اور ہماری جزوی حقیقت کا یہی فرق ہے۔ ایک انا کی دنیا ہے اور ایک سیلف کی دنیا ہے۔ جب انا مضبوط ہوتی ہے تو حتمی حقیقت کمزور ہوتی جاتی ہے، اور جب سیلف ہوتا ہے مضبوط، بینگ سے رابطہ ہوتا ہے، تو حقیقت ہوتی ہے طاقتور۔ یا اس کو یوں کہیں کہ انا جتنی توانا ہوتی ہے خدا سے دوری اتنی لامحدود ہوتی جاتی ہے، اور جہاں انا مٹ جاتی ہے وہاں صرف رہ ہی وہی جاتا ہے۔ اسی کو صوفی کہتے ہیں لا موجود الا اللہ۔ اس کو ایک اور انداز سے سمجھنے کی کوشش کرو۔ جب بارش ہوتی ہے تو وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھی برستی ہے اور وادیوں میں بھی برستی ہے، مگر پہاڑ پانی سے ایک طرح سے محروم ہی رہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ پہلے ہی بھرے ہونے کا سراب پال کے کھڑے ہوتے ہیں، جبکہ وادی پانی سے بھر کر جھیل میں ڈھل جاتی ہے کیونکہ وہ خود کو خالی رکھتی ہے۔ جب آپ انا سے بھرے ہوتے ہیں، جب آپ ایگو سے فل ہوتے ہیں، میں سے لبالب بھر جاتے ہیں، تو حتمی حق سامنے ہونے کے باوجود بھی نظر میں نہیں رہتا۔ لیکن جب آپ خالی ہو جاتے ہیں تو حتمی حقیقت آ کر آپ کو بھر دیتی ہے۔ بارش چوٹیوں اور وادیوں میں فرق نہیں کرتی، بس اگلے کی کیپیسٹی پر منحصر ہے کہ کون پہاڑ ہے، کون وادی ہے، کون خود کو خالی رکھنے کا فن جان گیا اور کون خود کو بھرا سمجھ کر تن کر کھڑا ہے۔ حتمی حقیقت خدا بس کچھ خاص لوگوں پر خود کو ظاہر نہیں کرتا۔ خدا بس صوفیوں کے سامنے ہی اپنا جلوہ نہیں دکھاتا، ہر انسان کے لیے وہ ایک ہی جیسی کھلی حقیقت ہے۔ فرق بس اتنا ہے کہ کون خالی ہے اور کس نے انا کی خواہشوں سے بھرے اپنے دماغ تلے خود کو چھپا لیا ہے۔ بارش پہاڑ کی چوٹی پر بھی ہوتی ہے، مگر چوٹی خود سے ہی اتنی بھری ہے کہ وہ کچھ اور اپنے اندر سما ہی نہیں سکتی۔ انسان بھی اپنی میں سے، اپنی ایگو سے، اپنے آپ سے اتنا بھر گیا ہے کہ خدا کو بھی اندر نہیں سمو سکتا۔ اس میں کچھ اور بھرنے کی گنجائش ہی نہیں، حتیٰ کہ خدا کی بھی اس میں گنجائش نہیں۔ وہ خود سے اتنا معمور ہے کہ اس سے آگے دیکھ ہی نہیں پاتا۔ کبھی سوچتے ہو کہ تم کتنے مصروف ہو، ہر وقت کچھ کر رہے ہو، ہر وقت تمہارا دماغ کچھ سوچ رہا ہے، ہر وقت کسی خواہش کے تعاقب میں تم بھاگ رہے ہو، ہر وقت تم اکوپائیڈ ہو، مقبوضہ ہو۔ خدا کے سمونے کے لیے جس ایمپٹینس کی شرط ہے، وہ خالی پن ہی کبھی تم میں پیدا نہیں ہوتا کہ خدا اس میں سما سکے۔
خدا سما جاتا ہے۔ کبھی تم نے اس بات کو نوٹس کیا کہ صوفی تمہاری زندگی کے تجربوں سے بھی اپنے لیے سبق نچوڑ لیتا ہے؟ جیسے پہاڑوں پر بارش ہوتی ہے مگر اس بارش کو بھی جھیل اپنے اندر سمو لیتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم وہاں ہوتے ہی نہیں ہو۔ اپنے تجربوں سے سبق لینے کے لیے بھی تم موجود نہیں ہو۔ تم بھی دوڑے ہو، صوفیوں فقیروں سے تو زیادہ ہی دوڑتے ہو، مگر کیوں اس سکون سے محروم ہو جو صوفی کو حاصل ہے، اس سٹلنس سے، اس سائلنس سے، اس پیس سے؟ اس لیے کہ تم زندگی کے اپنے تجربے سے ہی سبق لینے کو تیار نہیں ہو۔ کیا کبھی تم نے سبق لیا ہے اس حقیقت سے کہ تم بچپن سے منزلیں بنا رہے ہو، گول، اہداف، پرپس بنا رہے ہو؟ کبھی کھلونے خریدنے کے خواب تھے، کبھی سوچا کہ ڈگری مکمل ہو جائے تو زندگی مکمل ہو گئی، کبھی سوچا کہ محبوب یا محبوبہ مل جائے تو زندگی جنت ہو جائے، کبھی شادی میں تکمیل کو ڈھونڈا تو کبھی بچوں میں اور اس کے پیچھے بھاگے، کبھی نوکری میں اپنی ہر تشنگی کا علاج ڈھونڈا۔ یہ سارے تجربے کیا تمہیں یہ بتانے کے لیے کافی نہیں کہ تکمیل کہیں بھی مستقبل میں نہیں ہو سکتی؟ خواہش کے برتن کا کوئی پیندہ نہیں ہے۔ چیزوں میں اپنی تکمیل کو ڈھونڈنے کا سفر کبھی نہ ختم ہونے والا سفر ہے۔ وہی خلا جو بچپن میں تھا، وہی خلا اس وقت بھی رہا جب مرنے کے قریب آن پہنچے۔ کیوں زندگی کے تجربے تمہیں کچھ بھی سکھانے سے محروم رہے؟ زندگی کی نیچر کو بہت غور سے دیکھنا، ساری ترتیبیں تمہیں الٹ معلوم پڑیں گی۔ جو بھرا ہے وہ خالی رہ جاتا ہے، اور جو خالی ہے وہ بھر جاتا ہے۔ وادی کی ایک ہی خوبی ہوتی ہے کہ وہ خالی رہنے کا ہنر جان گئی ہے، اور پہاڑ کی چوٹی کی ایک ہی خامی ہے کہ وہ خود کو بھر کے بیٹھی ہے۔ صوفی اور دنیا دار بھی وادی اور جھیل جیسے ہیں۔ دنیا دار بھرا بیٹھا ہے، وہ فقیر کو خالی دیکھتا ہے اور اس پر ہنستا ہے۔ وہ فقیر جو خالی ہے، بالکل ایمپٹی، وہ اس کے بھرے ہونے کو دیکھتا ہے تو اس پر ہنستا ہے کہ کن کن چیزوں سے خود کو بھر کے بیٹھا ہے، اور کن کن چیزوں کو کس عظیم چیز کے بدلے بھر کے بیٹھا ہے۔ وہ اس گنجائش کو دنیا کے سرابوں سے بھر کے بیٹھا ہے کہ جس گنجائش میں خدا سما سکتا تھا۔ صوفی کے مذہب کی مثال ہے ایسا جیسے کوئی خالی گھڑا ہو، اور صوفی کہتا ہے کہ جس کو حقیقی مذہب کو پانا ہے اس کو اس گھڑے کو خالی رکھنا ہوگا، اس میں چیزوں کو بھرنے سے رکنا ہوگا، ہر قسم کی چیزوں کو اس گھڑے میں جمع کرنے سے باز رہنا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ اس گھڑے میں دولت بھر لی تو خدا تک نہ جایا جا سکے گا، اس میں علم بھی بھر گیا تو بھی گھڑے میں گنجائش نہیں بچے گی۔ حتیٰ کہ ترک دنیا، تیاگ، سنیاس، صوفی بننے کی خواہش بھی بھر گئی تو سمجھو رکاوٹ کھڑی ہو گئی۔ کوئی بھی چیز جس کی خواہش ہوگی جاننا، وہ حق تک پہنچنے میں رکاوٹ ہوگی۔ گھڑا بس خالی ہی ہونا چاہیے، لیکن انسان کو غور سے دیکھو، وہ ہر وقت اس گھڑے کو بھرنے کی کوشش میں مگن ہے، اور گھڑا بھی ایسا ان لمیٹڈ ہے کہ اس میں خلا کے علاوہ کچھ بھی بھرنے کی کوشش کرو گے یہ کبھی نہیں بھرے گا۔ بل گیٹس جتنی دولت ہو جائے، یا ہٹلر جیسی طاقت، یا سکندر جیسی شاہی، تب بھی وہ گھڑا نہیں بھر سکتا۔ تمہاری ہستی کے خالی گھڑے کو صرف تمہارا خالی ہونا ہی بھر سکتا ہے۔ اور تمہارا خالی ہونا کیا ہے؟ خالی ہونا یہ نہیں کہ تمہارا گھر نہ ہو، نوکری نہ ہو، فیکٹری نہ ہو۔ خالی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں تم کو طے کرنے والی نہ ہوں، یہ تمہاری ملکیتیں ہیں، تم نہیں ہو۔ تمہیں ایک غلط فہمی ہو گئی ہے
کہ زندگی اس لیے ہے تاکہ تم چیزوں سے بھر سکو، نہیں، زندگی اس لیے ہے کہ تم خالی ہونے کا فن سیکھ لو، کیونکہ خالی ہونے کا فن سیکھ لیا تو جب تم مرو گے اس وقت پتہ ہے کیا ہوگا؟ اس کو ایسے سمجھو کہ تمہارے پاس ایک خالی گھڑا ہے، وہ گھڑا ٹوٹ گیا تو اس کا خلا کہاں جائے گا؟ وہ کل خلا کا حصہ ہو جائے گا۔ گھڑے کی دیواریں مٹتی ہیں، اس کا خلا نہیں مٹتا۔ موت کے وقت تمہارے ساتھ بھی یہی ہو سکتا ہے اگر تم خود کو خالی کرنے کا فن سیکھ جاؤ۔ تمہارے جسم کی گھڑے کی دیواریں مٹ جائیں گی، مگر تمہارے اندر وہ خلا جو خدائی حصہ ہے وہ کل خلا کا دوبارہ حصہ بن جائے گا۔ قطرہ سمندر میں گرتا ہے تو اس کی بس وہ باؤنڈری وال ہی فنا ہو جاتی ہے جس باؤنڈری وال نے اسے قطرے کی شکل دے رکھی تھی، ورنہ قطرہ نہیں مٹتا، وہ تو سمندر ہو جاتا ہے۔ ڈارون کہتا تھا کہ کائنات جنگ کی بنیاد پر کھڑی ہے۔ اپنے سائنسی ثبوتوں سے شاید اس نے یہ ثابت بھی کر دیا ہو، کیونکہ جہاں تک ثبوتوں کا معاملہ ہے تو ان کی نیچر ہی ایسی ہوتی ہے کہ جہاں آپ کا فوکس ہے، جو ثبوت آپ ڈھونڈنے نکلے ہیں ویسے ہی ثبوت آپ کو ملتے ہیں۔ ڈارون کو جنگل میں درندے شکار کرتے اور چھوٹے جانور بچتے اور اپنے سے کمزور جانوروں کو مارتے نظر آئے، لیکن جنگل کے اس ایکو سسٹم میں موجود باہمی تعاون، کوآپریشن کو اس نے دیکھا ہی نہیں۔ شیر کے دن کا وہ 1 گھنٹہ توجہ کا مرکز رہا جب وہ شکار کر رہا تھا۔ شیر کے وہ باقی 23 گھنٹے چونکہ توجہ کا مرکز نہیں تھے، اس لیے وہ نظر نہیں آئے کہ جب وہ کوآپریٹ کر رہا تھا۔ اس کائنات میں جو بھی چیز جیسی ہے وہ ایسی اس لیے ہے کہ پوری کائنات اس کو ایسا ہونے میں تعاون دے رہی ہے۔ یہی کائنات کی بنیادی نیچر ہے۔ اصل مسئلہ ہے توجہ کا، فوکس کا۔ جہاں آپ کا فوکس ہو آپ وہیں جاتے ہیں۔ کامیاب لوگوں اور ناکام لوگوں کے ذہن کا اگر مکمل تجزیہ کیا جاتا تو ایک ہی بات نکل کر سامنے آتی، رائٹ فوکس اینڈ رانگ فوکس۔ تم بھی اگر کامیابی چاہتے ہو تو صرف اس بات کو کھوجو کہ دن کا زیادہ تر حصہ تمہارے تھاٹس کیا سوچ رہے ہوتے ہیں، غربت یا امارت، بیداری یا فرار۔ بیدار انسان اس کائنات میں موجود باہمی تعاون کو دیکھتا ہے، اور سویا ہوا آدمی اس کائنات میں صرف جنگ کو ڈھونڈتا ہے۔ یہ کائنات باہمی تعاون پر کھڑی ہے، یہ کائنات سرنڈر پہ کھڑی ہے، یہ کائنات عدم مزاحمت پہ کھڑی ہے۔ ریزسٹنس صرف انا کا ایک فریب ہے جس سے وہ خود کو موٹا کرتی ہے، اور جنگ صرف انا ہی دیکھتی ہے کیونکہ اس کی سانسیں ہی مقابلے پر ریزسٹنس پر چلتی ہیں۔ تم بچوں کو دیکھتے ہو، بات بے بات گرتے ہیں، خام خواہ چوٹیں کھاتے رہتے ہیں۔ ایک چلنا سیکھ رہا بچہ ایوریج ایک دن میں جتنا گرتا ہے اتنا اگر ایک بڑا آدمی اپنی پوری زندگی میں بھی گرے تو اس کی ایک بھی ہڈی سلامت نہ رہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا بڑے آدمی کی ہڈیاں پسلیاں چھوٹے بچوں سے زیادہ نرم و نازک ہوتی ہیں؟ بڑا ایک بار گرے چوٹ کھا کے ہسپتال جا پہنچتا ہے، لیکن ایسی 20 چوٹیں بچہ روز کھاتا ہے اور تھوڑی دیر رو دھو لینے کے بعد پھر کھڑا ہو جاتا ہے، پھر کھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ عقل کے جو تمہارے ترازو ہیں ان کے حساب سے سوچیں تو اصول یہ ہونا چاہیے تھا کہ بچے کو چوٹ لگتی اس کی ہڈیاں ٹوٹتی اور بڑے کو نہ لگتی، کیونکہ بڑے کی ہڈیاں بچوں کی طرح کمزور اور کومل نہیں ہوتی۔ بڑوں کی ہڈیاں تو زیادہ طاقتور ہوتی ہیں، زیادہ مضبوط ہوتی ہیں، مگر فریکچر ہمیشہ بڑے کی ہڈیاں ہوتی ہیں، بچے کی نہیں۔ بچہ گرتا ہے، روتا ہے، اٹھتا ہے، پھر کھیلنے لگتا ہے۔
तुम गिरते हो, सीधे एम्बुलेंस पे सवार अस्पताल पहुंच जाते हो। अगर ताकतवर होना ही फतह होता, अगर ताकतवर होना ही तहफ़्फ़ुज़ होता, सेफ्टी होती, तो बच्चे की हड्डियां टूटती, बड़े की नहीं। इसको दूसरी मिसाल से समझो। कभी तुमने शराबी को देखा है रास्ते पे कैसे गिरता पड़ता जाता है? आप किसी शराबी की तरह ज़रा गिर कर देखें, कहाँ कहाँ से हड्डी टूटती है। शराबी रोज़ रास्तों पे गिरता है, रोज़ ही सुबह घर पहुँच जाता है, ना हड्डी टूटती है ना कुछ होता है। शराबी में वो क्या राज है? इसमें भी वही बच्चे वाला राज है। असल में बच्चे को पता ही नहीं होता कि वो गिर रहा है। वो झुक जाता है और गिरने से राजी हो जाता है। रेजिस्ट नहीं करता, मज़ाहमत नहीं करता, वो नेचर की पूरी स्कीम के साथ ताउन कर जाता है। शराबी भी यही करता है, क्योंकि जब वो गिर रहा होता है उसे होश ही नहीं होता, बेहोश होता है। उससे पता ही नहीं चलता कि वो गिर रहा है और वो बड़े मज़े से गिर जाता है। मगर तुम लोगों के साथ क्या होता है? आप लोग जब गिर रहे होते हैं तो आपको पता होता है कि आप गिर रहे हैं, और इस पता होने की वजह से आप मज़ाहमत करते हैं, गिरने से बचने की कोशिश करते हैं, कंपीट करते हैं कि नहीं गिरना। ज़मीन की कशिश, ग्रेविटेशनल फोर्स तुम्हें नीचे की तरफ खींचती है, तुम उसको रेजिस्ट करते हो। इस मुकाबले में, इस जंग में हड्डियां टूटती हैं, गिरने से नहीं, रेजिस्टेंस से हड्डियां टूटती हैं। फ़कीर क्या कहता है? फ़कीर कहता है कि गिर जाओ। जब गिर ही रहे हो तो गिर जाओ, लड़ो मत, मज़ाहमत मत करो, खुद अपनी तरफ से गिर जाओ, साथ दो कशिश शकल का, यकीन मानो हड्डियां नहीं टूटेंगी। वो बच्चा जो गिरता है और हड्डियां नहीं तुड़वाता, वो अनजाने में यही कर रहा होता है। बच्चा छोटे पौधों की तरह रवैया दिखाता है। आंधी आती है तो उसका मुकाबला नहीं करता, उसका साथी हो जाता है। बगावत नहीं करता, ताउन करता है। रेजिस्ट नहीं करता, कोऑपरेट करता है। शराबी भी बिल्कुल यही करता है, होश नहीं होता, इसलिए वो भी छोटे पौधे की तरह बिहेव करता है, बच्चे की तरह बिहेव करता है, और आंधी में आंधी का साथी हो जाता है। यही शराबी हो, इसे होश हो, तब गिरे, तब चोट खाएगा। सूफी क्या होता है? सूफी यही काम करता है, मगर होश में, पूरे शऊर के साथ, कॉन्शियसली। बच्चे जो अनजाने में करते हैं, शराबी जो बेहोशी में करते हैं, सूफी उसको होश में करता है, जान के करता है। दो लफ्ज़ हैं, बहुत अहम है, उन्हें समझना चाहिए। जिंदगी के सारे मसले इन दो लफ्ज़ों के साथ जुड़े हैं, मज़ाहमत और तर्क के मज़ाहमत, रेजिस्टेंस और सरेंडर। अगर तुम मज़ाहमत करोगे, रेजिस्ट करोगे, तो हार कर रहोगे, और अगर सरेंडर करोगे तो जितने हारते हुए चाहे तुम नजर आते रहो, जीत कर रहोगे। आंधियां गुजर जाएंगी, तुम वापस खड़े हो जाओगे। पता है, जिंदगी बड़ा दिलचस्प खेल है। तुम खेल खेलने में दिलचस्पी नहीं रखते, तुम्हें इस खेल में दिलचस्पी सिर्फ जीतने की हद तक है। तुम जीतने के लिए बस ये खेल खेलना चाहते हो, और जब जीत नहीं पाते हो तो जिंदगी गम की धुंध में लिपट जाती है। जिंदगी का मौजज़ा फिर आंखों के सामने नहीं रहता। एक बात मेरी लिख के रख लो कि जीत की ख्वाहिश में जिंदगी का खेल खेलोगे तो आखिर में हारे हुए लौटोगे। लेकिन अगर खेल खेलना तुम्हारा मकसद बन गया तो कभी मायूस नहीं होगे। बच्चों को देखो, सारा दिन खेलते हैं, हारते हैं या जीतते हैं, उन्हें इस बात से कोई सरोकार ही नहीं, वो खेल में मगन है। इसलिए देखते नहीं हो कि जब खेल में जीत की ख्वाहिश शामिल होती है, यानी जब तुम बड़े हो जाते हो तो बड़ी हसरत से बचपन को याद करते हो। क्यों याद करते हो? सिर्फ इसलिए क्योंकि बचपन में तुम सिर्फ खिलाड़ी थे, जिंदगी के खेल के खिलाड़ी। बड़े होकर तुम इस खेल को जीतने में मस्त एक रोबोट बन गए। यही वो चीज़ है जिसने तुमसे इस खेल का सारा लुत्फ छीन लिया है। सब कुछ वही है, सब कुछ तुम आज भी वैसा ही कर रहे हो जो बचपन में करते थे।
बच्चे का बाल के पीछे भागना और तुम्हारा ओहदे, दौलत और शोहरत के पीछे भागना, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। ये दोनों एक ही चीज़ हैं। फ़र्क सिर्फ इतना पड़ा है कि तब खेल मकसद था, अब जीत की ख्वाहिश मकसद है। सिर्फ इसी वजह से बच्चे खुश होते हैं और बड़े उदास। तुम्हें हर दम सराहा जाना पसंद है, जाने जाने की ख्वाहिश है, तारीफ़ व तहसीन की तलब है। ये तलब तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी अना की है। सराहे जाने की तमन्ना करोगे तो हमेशा मुज़म्मत और लान तान ही सुनोगे। ऐसा नहीं है कि सराहे जाने की ख्वाहिश ना होगी तो लोग मुज़म्मत ना करेंगे, बल्कि जब सराहे जाने की ख्वाहिश ना रहेगी तो लोगों की मुज़म्मत और लान तान तुम्हें छुएगी नहीं। मसला लान तान में नहीं, मुज़म्मत में नहीं, तनकीद में नहीं, मसला ये है कि वो लान तान, वो गालियाँ, वो हद तक तुम्हें छू जाती है। ख्वाहिश ना होगी तो इस सूरत में मुज़म्मत होगी, असर नहीं होगा, क्योंकि तवक्को नहीं होगी। मजरूह मुज़म्मत नहीं करती, इंसान मजरूह होता है क्योंकि वो तवक्को करता है सराहे जाने की। लानत मलामत मुज़म्मत क्यों चोट करती है? इसलिए नहीं कि लोग आपको बुरा भला कह रहे हैं, बल्कि इसलिए कि आपके दिल में ये ख्वाहिश है कि लोग सराहें, इज़्ज़त दें, एहतराम दें। असल मर्ज़ ये ख्वाहिश है, लोगों की लानत मलामत नहीं। दर्द कब उभरता है? उस वक्त जब तमन्ना हो फूलों की और कोई पत्थर ले आए। दर्द पत्थर में नहीं होता, दर्द उस तमन्ना में है जिसने कुछ और चाहा था और कुछ और मिला। ज़ख्म वो पत्थर नहीं देता जो तुम्हें मिला, ज़ख्म वो ख्वाहिश देती है जो दिल में थी कि फूल मिलेगा। अगर फूल की ख्वाहिश ही ना हो और कोई पत्थर दे मारे, कभी दर्द नहीं होगा। तरस आएगा कि बेचारा क्यों मेहनत करके पत्थर मार रहा है। एक बार सिद्धार्थ बुधा के पास एक शख्स आया और उसके मुंह पर थूक दिया। सिद्धार्थ ने कपड़े से मुंह साफ किया और कहा, कुछ और कहना है या बस इतना ही कहना था? बुद्ध का एक भिक्षु था, अपने दौर का बड़ा नामी गिरामी पहलवान था। वो भी उस वक्त साथ ही बैठा था। वो तो आग बगोला हो गया। उसने कहा, यह बदतमीजी नाकाबिले बर्दाश्त है। उसने बुद्ध से इजाज़त मांगी कि इस शख्स को इसकी बदतमीजी का सबक सिखाया जाए। बुद्ध ने उसे कहा, तुम समझे नहीं, बाज़ औक़ात इंसान कुछ कहना चाहता है मगर ज़बान के लफ्ज़ कम लगते हैं। यह आदमी इतना गुस्से में था कि इसे कोई लफ्ज़, कोई गाली ना सूझी, इसलिए ये थूक के कह रहा है, ये कुछ करके कह रहा है। करके बताना और बोल कर बताने में बड़ा फ़र्क है। करके बताना ज़्यादा गहरी शिद्दत का आकाश है। तुम देखते नहीं कि किसी पर बहुत प्यार आ रहा हो तो तुम कहते नहीं हो कि मुझे तुमसे प्यार है, बल्कि बस उसे गले से लगा लेते हो, खामोशी से कुछ करके उसे बताते हो कि मैं ये महसूस कर रहा हूँ। जब इंसान के लफ्ज़ कमज़ोर पड़ जाएं तो उस वक्त एक्शन से आदमी बोलता है। बुद्ध ने भिक्षु को कहा कि तू नाहक नाराज़ हो रहा है, इस बेचारे को देख, इसका गुस्सा उबल रहा है, और बिलफर्ज इसने मुझ पर थूक कर कोई गलती भी की है तो इसने की है। तू आग बगोला होकर सज़ा खुद को क्यों देता है? इसको माफ़ किया जा सकता है कि ज़िंदगी के राजों से ये शख्स आगाह नहीं। तुमको कैसे माफ़ किया जा सकता है कि तुम तो खुद को भिक्षु कहते हो, खुद को राह सदाकत का मुसाफिर समझते हो। इस बात को समझो, ज़िंदगी चंद असूलों पर खड़ी है। जब तक ये असूल ज़िंदगी में आ नहीं जाते, ज़िंदगी खुद अपनी बुनियाद पर खड़ी नहीं होगी। इन असूलों को अपनी तकरीरों, नसीहतों और मशवरों का हिस्सा ना बनाओ, ज़िंदगी का हिस्सा बनाओ। सादा सा असूल है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा ऐसे ही है जैसे किसी और के किए की सज़ा खुद को देना। अब भाषणों, तकरीरों, नसीहतों में इस उसूल को सभी बयान कर रहे हैं, लेकिन बताओ कि अमली ज़िंदगी में तुम्हें ये असूल कहीं नज़र आता है? असल में मशवरा देना बहुत आसान है, और मैं तुम्हें बताऊं कि मशवरा देना कोई ज़हीन, कोई दानिश्वर होने की अलामत नहीं है। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जो चीज़ दी जाती है वो है मशवरा, और जो सबसे कम ली जाती है वो भी है मशवरा। इस बात को समझो कि जब तक ज़िंदगी मुकाबला रहेगी, जब तक इस ज़िंदगी को तुम कंपटीशन समझते रहोगे, तुम सुकून से महरूम रहोगे। जब ज़िंदगी को खेल समझना शुरू करोगे
तो ही फिर इसे तुम एंजॉय कर सकोगे। जब जिंदगी अना के कंट्रोल में होती है तो मुकाबला होता है, कंपटीशन होता है, जैसी कि ये तुम्हारी दुनिया हो गई है। और जब जिंदगी बीइंग के कंट्रोल में होती है तो ये खेल बन जाती है, ये सूफी का रक्स बन जाती है। इस पर जरा गौर करना। तुम इज्जत चाहते हो, जिल्लत से बचना चाहते हो। तुम्हारा हमसाया भी यही चाहता है। तुम्हारे इर्द गिर्द मौजूद जितने लोग हैं सारे यही चाहते हैं ना। सारा जहान इज्जत चाहता है, जिल्लत से भागता है। कामयाबी, जीत, फतह सब चाहते हैं। और जहां सभी इज्जत चाहते हों वहां कोई इस दौड़ में आगे निकलेगा, कोई रह जाएगा। जो आगे निकल जाएगा बाकी के सारे लोग उसको जलील करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो खुद को ऊपर ले जाना चाहता हो उसके लिए दूसरों को गिराना नागुज़ीर है। देखते नहीं हो अपने सियासतदानों को, अपने मौलवियों को, अपने अदीबों को, वो ऊंचाइयों को छूने के लिए कैसे दूसरों को नीचे गिराते हैं। खुद को मोमिन दिखाने के लिए कैसे दूसरों को काफिर करार दिलवाते हैं। खुद को मुहिब्बे वतन साबित करने के लिए कैसे दूसरों को गद्दार करार दिलवाते हैं। अगर तो इस उसूल पर अजमत चाहते हो तो कुछ को जिल्लत की गहराइयों में गिरा साबित करना ही होगा। ऐसी कामयाबी को तुम कामयाबी मान ही नहीं सकते जिसमें दूसरों की नाकामी ना हो। ऐसी इज्जत को तुम इज्जत कहते ही नहीं हो जिसमें दूसरों की जिल्लत ना हो। उस फतह को तो तुम फतह ही नहीं कहते जिसमें दूसरों की शिकस्त का ख्याल शामिल ना हो। क्योंकि अगर हर किसी को ऊपर जाने दोगे तो खुद कैसे ऊपर होगे। ये मर्तबों की हिरारकी जो तुम लोगों ने बनाई है वो इहराम मिस्र के तर्ज पर है। जितनी ऊंचाइयां मिलेंगी जगह थोड़ी होती जाएगी और जो चोटी पर सबसे टॉप पर खड़ा होगा पूरा ज़माना उसका दुश्मन होगा। सारे उसे नीचे गिराने में यकजां हो जाएंगे। ऐसा मौका जब आता है तो मैकियावेली को गाली देने वाले, उस पर तनकीद करने वाले भी उसी का कौल दोहराते साथी हो जाते हैं कि दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त। देखते नहीं हो सियासी जोड़ तोड़, देखते नहीं हो मुल्कों के साथ ताल्लुकात की नोयत। ये ऊपर मौजूद शख्स को नीचे गिराने में एकजुट हो जाते हैं। और कल जब वो गिर जाएगा तो ये लोग फिर आपस में लड़ेंगे, क्योंकि फिर सवाल उठेगा चोटी पर कौन। दूसरी जंग अजीम में क्या हुआ? अजली दुश्मन दोस्त बन गए। कोई सोच सकता था स्टालिन, चर्चिल, रोजवेल्ट साथ खड़े होंगे? ख्याल से परे था ये तसव्वुर। लेकिन जब हिटलर हदों से बाहर निकल गया, हिरारकी के इहराम मिस्र पर टॉप पर पहुंचने वाला हो गया, तो उन्हें साथ मिलने में कोई मसला ना रहा। सब भूल भाल कर दोस्त बन गए। लेकिन जो ही जर्मनी दूसरी जंग अजीम हारा, ये फिर आपस में लड़ने लगे। और ये पहले से सबको पता था कि ये बाद में लड़ेंगे। इन तीनों की दोस्ती की वजह तो हिटलर से दुश्मनी थी। वो गिर गया तो इनके करीब रहने की वजह भी ढह गई। जंग के दिनों के दोस्त और करीबी इत्तेहादी जंग के खात्मे पर एक दूसरे के वैसे ही दुश्मन हो गए, क्योंकि फिर वही सवाल उनके दरमियान आ गया कि चोटी पर कौन हो। रूस और अमेरिका फिर दुश्मन बनकर मैदान में खड़े हो गए। यही असूल है तुम लोगों की दुनिया में। इज्जत, दौलत, शोहरत, कामयाबी, जीत के ख्वाहिशमंद के वो सब दुश्मन हो जाएंगे जो खुद दौलत, इज्जत, शोहरत और कामयाबी चाहते हैं। सब उसे गिराने में यकजान हो जाएंगे। ये तुम्हारी दुनिया का ढंग है। तुम लोग जंग ढूंढते हो क्योंकि अना जंग को जीत कर या हार कर ही खुद अपना होना साबित कर सकती है। दूसरी तरफ तुम्हारी बीइंग है जिसे खुद को साबित करने के लिए किसी को मिटाने, हराने, जलील करने की कोई जरूरत नहीं होती। याद रखो, जिस भी चीज को तुम चाहते हो कि वो तुम्हें कल मिले, जिसकी भी तुम कल पाने की ख्वाहिश करते हो, वो तुम्हारे आज को बर्बाद कर जाती है। और लुत्फ की बात तो ये है कि वो चीज जब कल तुम्हें मिलेगी तो तुम उससे लुत्फ लेने को उस वक्त नहीं होगे, बल्कि तुम किसी और कल में कुछ और की ख्वाहिश लेकर उस वक्त के आज को बर्बाद कर रहे होगे। क्योंकि कल की आदत जो तुम बना चुके हो वो कल भी तुम्हारे साथ वैसे ही होगी जैसे आज है। देखो, कल जब आता है तो वो आज हो जाता है और आज को जीने का तुम्हें कोई तजर्बा ही नहीं है। आपकी मुसलसल आदत है कल में जीने की। आज को तो आप
जिए ही कभी नहीं। ये कितनी दिलचस्प बात है, कभी तुम इस पर गौर करना। जब भी कल आएगा वो आज हो जाएगा, और जैसे ही वो आज हो जाएगा तुम उससे अनकॉन्शियस हो जाओगे। और हो सकता है कि वो कल जो आज हो गया है उसका परसों तुमने इंतजार किया हो। कभी गौर किया, बच्चे सालों इंतजार करते हैं बड़े होने का। कितना शिद्दत से इंतजार था उन्हें बड़ा होने का। नकली दाढ़ी मूंछ लगाकर, एड़ियों के बल खड़े होकर वो बड़े होने की अपनी ख्वाहिशी का तो इजहार कर रहे होते थे। मगर आज वो बड़े हो गए तो सोच सकते हो तुम कि वो इसको कितना एंजॉय करते होंगे। नहीं, वो और कल बना लेते हैं। डिग्री, नौकरी, शादी, घर, कल में जीना अब आदत है। याद रखो, तुम्हारा आज जैसा भी हो, जितना भी शानदार हो, तुम कल की जीने की आदत को जो बना चुके हो उसको नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अना को जीना ही कल में आता है। वो गुजरा कल हो कि आने वाला कल। अना को सबसे ज्यादा नफरत इस पल से, लम्हे मौजूद से होती है। बरसों जिस नौकरी के लिए तरसते हो, तड़पते हो, वो मिल जाती है, फिर क्या मुतमईन हो जाते हो? नहीं, फिर प्रमोशन ढूंढते हो, कुछ और जो है वो नहीं। ये पल कैसा है ये अहम नहीं, वो पल कैसा होगा ये अहम है। कैसी हैरत की बात है कि जिस कल के आने के तुम इतने ख्वाहिशमंद होते हो, जब वही कल आता है तो तुम वहां नहीं होते, क्योंकि तुम तो कल में ही जीना ढंग बना चुके हो। जैसे शराब होता है ना सहरा में, अना और इंसानी दिमाग बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं। शराब क्या होता है? रेत में पानी नजर आया, तुम चलते हो, वहां पहुंचते हो, और वहां जाकर राज ये खुलता है कि पानी था ही नहीं, रेत थी। पानी तो वो दूर आगे है। तुम फिर चल पड़ते हो। सोचो, क्या इस तरह कभी पानी तक पहुंचा जा सकता है? तुम याद करो अपने बचपन से अब तक गुजरी सारी जिंदगी को। क्या क्या ना था जो तुमने कल में चाहा था, और जब वो कल उन सब चीजों के साथ वहां आया तो तुम ही वहां नहीं थे। तुम लोगों का हाल उस शख्स का सा है जिसकी आंख के साथ मसला हो और वो दूर की ही चीज बस देख सकता हो, और जब उस चीज के करीब पहुंचे तो वो चीज उसे नजर आना ही बंद हो जाए। तुम जब छोटे से बच्चे होते हो तो तुम्हें एक ही गम होता है कि कब मैं बड़ा होऊंगा और अपने खिलौने खरीद सकूंगा। लेकिन जब वो बड़ा होता है तो उसे खिलौने नजर ही नहीं आते। तुम्हें फार साइटेडनेस की बीमारी है। तुम दूर ही की चीज को देख सकते हो, और जब दूर की इस चीज तक पहुंचते हो तो वो चीज गायब हो जाती है और तुम किसी और चीज को देखने लगते हो। और मजे की बात यह है कि तुम्हें कभी ख्याल ही नहीं आता कि हर चीज के साथ तुमने अब तक यही किया है। हर दफा जब तुम खिलौने खरीदने के काबिल हुए तो खिलौने नजर आना बंद हो गए। तुम सारी जिंदगी दौड़ते हो, तुम्हें तुम्हारी पसंद के खिलौने हमेशा दूर नजर आते रहते हैं, मगर कभी रुक कर ये सवाल नहीं करते खुद से कि मसला चीज के साथ नहीं है। वो चीज नहीं उड़ जाती, बल्कि मसला मेरी आंख के साथ है, जो फिक्स्ड है, जो दूर ही देख सकती है। वो 5 फीट से आगे ही देखती है, 5 फीट से पीछे ब्लाइंड स्पॉट आ जाता है। इंसान ऐसे ही जी रहा है, हमेशा ब्लाइंड स्पॉट में। इंसान का आज हमेशा अंधेरे में होता है। इस पल से इंसान हमेशा गाफिल होता है, और यही पल वो पल है जिसमें तुम्हारा सारा खजाना है। अना की यही बीमारी है। अना कल को देखती है, मगर कल के साथ वो कुछ कर नहीं सकती। तुम कभी सोचते हो कि तुम अपने कल के साथ कुछ भी नहीं कर सकते? कल के सर दर्द का इस वक्त इलाज तुम नहीं कर सकते। कल का खाना तुम इस वक्त नहीं खा सकते। कल के साथ तुम कुछ भी तो नहीं कर सकते। मगर अना
कल को ही देखती है। इस पल के साथ तुम सब कुछ कर सकते हो, मगर इस पल को तुम्हारी अना नहीं देख सकती। आज में कुछ किया जा सकता है, मगर आज में आप नहीं होते, और कल में कुछ नहीं किया जा सकता और आप हमेशा वही कल में होते हैं। ये शराब की दौड़ पूरी जिंदगी को बेकार कर देती है। जिंदगी को जीने की बजाय दौड़ने में लगा देते हो। ये जो आज के इंसान को एम्प्टीनेस फील होती है, कहीं फुलफिलमेंट नहीं, कहीं कोई भराव नहीं। जो भी पाते हैं वो फ्रेश नहीं लगता, बासी लगता है। जो भी पकड़ते हैं फेंकने जैसा लगता है। जिसको भी खोज लेते हैं उसके ही सारे मानी खो जाते हैं। फकीर तुम्हें ख्वाहिशों से आज़ाद करता है। क्यों? ताकि तुम इस दौर से रुक कर देखो। जो तुम चाहते हो वो यहाँ है, तुमने नज़र टिकाई हुई है दूर। जिंदगी यहाँ है। फकीर ख्वाहिशों से आज़ाद करता है ताकि तुम कल के पीछे अंधाधुंध दौड़ने से रुक जाओ। और ये भी बता दूं कि फ़कीर कहता नहीं है कि इस ख्वाहिश को छोड़ दो, फलां ख्वाहिश को तर्क कर दो। इस बात को समझो, क्योंकि अगर कोई फ़कीर है, कोई सच्चा मुर्शिद है, वो तुम्हें कहता है कि ख्वाहिशें छोड़ दो, फलां ख्वाहिश छोड़ दो, और आगे से तुम सवाल कर देते हो किस लिए, फॉर व्हाट। और फिर वो कहे कि जन्नत के लिए, खुदा के लिए, निजात के लिए, निर्वाण के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। तो अब सवाल तो बनता है कि ये भी तो ख्वाहिश है। तुम हमें एक ख्वाहिश छोड़कर दूसरी ख्वाहिश ही पकड़ने का कह रहे हो। नहीं, सच्चा फ़कीर ये कहता नहीं है कि ख्वाहिश छोड़ दो, क्योंकि ऐसा कहेगा तो उसे लाजमन तुम्हें कोई और ख्वाहिश पकड़ाना होगी। यही सारे रिवाजी मजहबी करते हैं। वो कहते हैं ये फजूल की ख्वाहिश के पीछे पड़े हो, इधर आओ, हम तुम्हें बताते हैं कि क्या ख्वाहिशें हैं करने वाली, क्या है पाने के काबिल। गौर से देखो तो ये रिवाजी मजहबी तुम्हारे दुनियादारों से ज़्यादा कैलकुलेटिव हैं, ज़्यादा हिसाब किताब वाले हैं। वो कहते हैं कि तुम तो बेकार से घर की ख्वाहिश में सड़े जा रहे हो। आओ हम तुम्हें बताएं जन्नत में महल कैसे खड़ा होता है। ख्वाहिश छोड़ने का जो कहेगा वो नई ख्वाहिश को ज़रूर पकड़ाएगा, क्योंकि वो भी जानता है कि तुम्हारा दिमाग कैसे काम करता है, तुम्हारी अना कैसे ऑपरेट होती है। वो भी जानता है कि कल तुम्हारे लिए तुम्हारे आज से ज़्यादा अहम है। वो कल से नहीं हटाता, कल की ख्वाहिश को रिप्लेस कर देता है। फ़कीर ये नहीं करता। फ़कीर बस बता देता है कि ख्वाहिश ये है, ये ऐसे काम करती है। तुम्हारी ही जिंदगियों से तुम्हें दिखा देता है कि देखो ये तुम्हारी ख्वाहिश है जो गुजरे कल में तुमने की थी, अब ये तुम्हारे लिए कितने कोई अहम है। वो ख्वाहिश का सच बताता है। वो छोड़ने और पकड़ने की बात ही नहीं करता, क्योंकि छोड़ना और पकड़ना अना का तकाजा है। जानना, सच जानना, हतमी हक जानना, ये तुम्हारी रूह की दुनिया है, ये तुम्हारी हस्ती का तकाजा है। कभी देखा है दुनिया का दौड़ना और फ़कीर का सहराओं में भटकना? दोनों भाग रहे हैं ना, लेकिन एक कुछ पाना चाहता है और दूसरे ने कुछ भी नहीं पाना, मगर उस पाने के इरादे से दौड़ने वाले से भी मुश्किल रास्ता वो दौड़ रहा है। दुनियादार तो एयर कंडीशनड ऑफिस से घर की दौड़ लगा रहा है, मगर सूफी फ़कीर कभी सहरा में जल रहा है, कभी जंगल में भटक रहा है, कभी हिमालय के गारों में तन्हाई झेल रहा है, और कुछ पाना भी उसने नहीं है। वो बस जानना चाहता है। रूह हमेशा जानना चाहती है, अना हमेशा पाना चाहती है। और मज़े की बात यह है कि पाने में तस्कीन ढूंढती दुनिया सब कुछ पाकर भी तस्कीन नहीं पा पाती, और कुछ ना पाने को चलने वाला फ़कीर सुकून, पीस और ज़िंदगी को पा लेता है। कभी इस राज पर तुम गौर ज़रूर करना। फ़कीर ख्वाहिश की नेचर खोल कर बता देता है, छोड़ने की बात नहीं करता। वो बस ये कह देता है कि ये दीवार है, इससे निकलोगे सर टूटेगा,
وہ یہ نہیں کہے گا کہ اپنا سر نہ توڑو، کیونکہ اس سے سوالوں کا سلسلہ جنم لے گا اور کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کہہ سکتے ہو کیوں سر نہ توڑیں؟ وہ یہ بھی نہیں کہے گا کہ اس دیوار سے نہ نکلو، کیونکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیوں نہ نکلیں۔ دھیان رہے کہ فقیر آپ کو کوئی پازیٹیو ڈیزائر نہیں دیتا کہ اس کے لیے ایسا مت کرو، وہ بس اتنا ہی بتا دیتا ہے کہ ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا۔ صوفی بس اتنا کہتا ہے کہ ڈو دس اینڈ دس فالوز۔ کسی سچے فقیر سے کبھی پوچھنا کہ ہم کیا کریں، وہ کبھی تمہیں یہ نہیں کہے گا کہ یہ کرو یہ نہ کرو۔ وہ کہتا ہے کہ یہ تم مجھ سے پوچھو ہی مت، تم مجھ سے یہ پوچھو کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو، تو میں تم کو بتا دوں گا کہ تم یہ کرو گے تو یہ ہوگا۔ اس سے زیادہ کبھی مرشد نہیں کہتا۔ فقیر کہتا ہے کہ میں بس تمہیں اتنا بتا سکتا ہوں کہ دیوار سے نکلو گے تو سر ٹوٹے گا، اور دروازے سے نکلو گے تو بنا سر ٹوٹے نکل جاؤ گے۔ اب یہ تمہاری چوائس، دیوار سے نکلو یا دروازے سے نکلو۔ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ تم دیوار سے مت نکلو۔ فرق سمجھتے جاؤ۔ ایک تو صورت یہ ہے کہ تم سے صاف صاف کہا جائے کہ یہ کرو، لیکن جب بھی کوئی آپ کو پازیٹیولی کہے گا کہ ڈو دس، تو آپ کا فوری ری ایکشن ہوگا کہ کیوں، اور کیوں کے جواب میں کچھ بھی کہا جائے تو کیوں کبھی نہیں جائے گا، کیونکہ پھر ہر جواب پر کہا جا سکتا ہے کہ کیوں۔ فقیر بس اتنا کہہ دیتا ہے کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا، خواہش کے پیچھے بھاگو گے تو دکھی ہو کر رہو گے، چھت سے کودو گے تو ٹانگیں تڑواؤ گے۔ خواہش میں دکھ ہے، یہ نیچر کا اتنا ہی پکا قانون ہے جتنا کشش ثقل کا قانون۔ فقیر یہ نہیں کہتا کہ خواہش میں نہ پڑو تو تمہیں سکھ ملے گا، کیونکہ پھر تم کہو گے کہ ٹھیک ہے ہمیں سکھ چاہیے، یہ پھر خواہش بن گئی۔ کیسے ملے گا سکھ یہ بتاؤ؟ خواہشوں کا پھر نیا سلسلہ جڑ جائے گا۔ خواہش ہی اصل میں دماغ کا وہ ڈیلیوژن ہے، سراب ہے، بھرم ہے، جس سے وہ آپ کی ہستی پر اپنا کنٹرول پا لیتی ہے۔ اس لیے فقیر کبھی تمہیں کسی خواہش کو چھوڑنے کا موقع نہیں دیتا۔ فقیر صرف انجانے کو جانا کر دیتا ہے اور فیصلہ مکمل طور پر تم پر چھوڑ دیتا ہے۔